Hello class, welcome to our online English classes for UGC-NET. Today we are going to study the most important and last play of Shakespeare, which is called Romance of the Play, The Tempest. So first, look at the key facts of The Tempest. Author William Shakespeare. Genre, it is called romance and also called tragicomedy. Written around 1610 and 1611 and believed to be Shakespeare's last solo play. And the play is first performed in 1611 before King James I and first publication, first folio 1623. And setting of the play is a remote enchanted island. No name is mentioned in the drama. Symbols, look at the symbols. Tempest, storm, symbolizes both destruction and cleansing. Brings enemy together for reconciliation. Prospero's books represent knowledge, power, and source of his magic. His renunciation, Shakespeare's retirement from theatre. Ariel, symbol of freedom, imagination, and art, embodies the beauty of service and longing for release. Caliban, who is the slave of Prospero, represents colonized pupil, instinct, and the clash between nature and civilization. The mask symbolizes the illusory beauty of art and fleeting nature of life. So these are the symbols of the play. Major themes of the play: power and control. Prospero controls the island and spirits and even the fates of shipwrecked man. Explores political power, magical power, and colonial power. Colonialism, this is the most important theme of the play. Colonialism, the relationship between Prospero, who is colonizer in the play, and Caliban, who is colonized, reflects early 17th century European colonial attitudes. Illusion versus reality. The whole play questions what is real or just the stuff of dreams. Theatre itself becomes a metaphor for illusion. Forgiveness and reconciliation. So forgiveness and reconciliation and colonialism is the most important themes of the play. Unlike revenge tragedies, The Tempest ends in mercy and harmony. Prospero forgives his enemies and rather than punishing them. Freedom versus servitude. Ariel longs for freedom from service. Caliban also resists its slavery. Miranda's marriage also symbolizes liberation and new beginning. Motifs, which are recurrent element in the play: storms and the sea. Storms and the sea. The tempest itself, chaos, transformation, and fate. Sea voices symbolizes danger, discovery, and change. Mask and performance. Prospero stages entertainment mask for Miranda and Ferdinand. The play reflects on theatre itself as illusion. Music and sound. Ariel's songs, mysterious music, enchantment and transformation and emotional manipulation.
dreams and sleeps. Many references to the dreams emphasizes life as transient and illusory. Caliban's dream of riches contrast with Prospero's we are made of such stuffs as made of dreams. Magical books of Prospero symbolizes knowledge, authority, and control. The whole play is written in blank verse, and common prose is used by the manual characters of the play. Let's move on the characters of the play. Prospero, who has a daughter, Miranda. Prospero is the rightful Duke of Milan, whose kingdom is usurped by his own brother, Antonio, who betrays him and usurps his whole kingdom. Antonio, with the help of kings of Alonso, Antonio usurps the kingdom of Prospero with the help of King Alonso, king of Naples. King Alonso, who helps Antonio in usurping the kingdom of Milan of Prospero, has a son named Ferdinand. And Ferdinand falls in love with Miranda, who is the daughter of Prospero, the magician and the rightful Duke of Milan. Alien, who serves Prospero on the island. Sebastian, who is the treacherous brother of King Alonso. Caliban, who wants to kill Prospero because Prospero forcefully colonized Caliban's island, because in actuality the whole island was used to be of the mother of Caliban. वो जो पूरा एक आइलैंड है वो पहले कैलिबान की माता का ही हुआ करता था, उसका नाम था साइकोरेक्स। अब कैलिबान उस आइलैंड को प्रोस्पेरो से छीनना चाहता है ताकि वो उस पर राज कर सके। Two minor character, Steve Trincolo and Fun. Now let's move on the play, the plot of the play. So the play starts with the dangerous tempest in the sea. तो नाटक की शुरुआत एक भयंकर तूफान से होती है और उस तूफान में एक शिप फंसा हुआ है और उस शिप में एलेंजो, जो नेपल्स का जो राजा है, उसका बेटा फर्डिनेंड, सेबास्टियन जो प्रोस्पेरो का भाई है, एंड सेबास्टियन जो एलोंजो का भाई है, एंटोनियो जो प्रोस्पेरो का जो भाई है, एंड गोंजेलो उनका एक सेवक, और कई सारे सब दरबारी उस शिप में फंसे हुए हैं। तूफान में जब जहाज टूटने ये लगता है तो सबको ये लगता है कि हम सब आज डूबकर मर जाएंगे। सब लोगों को ये लगता है कि आज रात उनकी शायद ये आखिरी रात होगी। लेकिन इस सीन को दूर से
प्रोस्पेरो एक एक आइलैंड पर अपनी बेटी के साथ देख रहा होता है, और जब वो शिप उस भयंकर तूफान में जब ये फंस जाता है, एक्चुअली वो कोई नेचुरल तूफान नहीं था, वो तो प्रोस्पेरो ने अपने ये जादू से उस समंदर में उस तूफान को ये क्रिएट किया था। तो इन सब को देखकर जो ये मिरांडा है, जो जो प्रोस्पेरो की जो ये बेटी है, वो बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि पिताजी प्लीज इन सब लोगों को आप ये जो है तो ये सब जो है तो ये बचा लीजिए। तो ये जो है प्रोस्पेरो ये बताता है कि यह तूफान बेटे प्राकृतिक नहीं है, बल्कि उसी ने अपने जादू से पैदा किया है। अब प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा को अपना अतीत बताता है कि देखो बेटी, मैं कभी मिलान का ड्यूक हुआ करता था, लेकिन मेरे ही भाई एंटोनियो ने मुझे धोखा देकर, मुझे गद्दी से हटाकर एलेंजो यानी कि जो किंग ऑफ नेपल्स है उसकी मदद से मुझे मेरी ही राजगद्दी से हटा दिया और मेरा सारा राजपाट छीन लिया, और मुझे और ये और मुझे और ये जो है तो ये तुम्हें हमें वहां से रातों रात ये भागना पड़ा, लेकिन हमारी जो हेल्प की थी वो हमारे बहुत लॉयल सर्वेंट गोंज़ालो ने की थी। उसी ने हमें चुपके से एक छोटी सी एक ये नाव दी थी और कुछ किताबें दी थी और कुछ खाने का ये सब सामान दिया था, और इस तरह हम इस द्वीप पे आकर हम बसने लगे थे। जब ये तूफान चल रहा था तो वहां पे एक एरियल थी जिसे प्रोस्पेरो ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। वो सब उसी ने उस तूफान को ये क्रिएट किया था, और उसी तूफान को जो कैलिबान था उसी की मां का उसी की माता का ये पूरा आइलैंड कभी हुआ करता था। उसकी माता का नाम था साइकोरेक्स। तो जब एरियल जब एरियल जो एक आत्मा है और ये जिसे प्रोस्पेरो ने साइकोरेक्स के जादू से मुक्त किया था, अब वह प्रोस्पेरो की सेवा करती है। और कैलिबान और ये जो है और ये जो और ये जो एक और ये जो एक छोटा शैतान है, ये कैलिबान, वो साइकोरेक्स का बेटा है। पहले वो प्रोस्पेरो की मदद करता था, लेकिन वो बाद में विद्रोही हो गया, और अब वो प्रोस्पेरो से हमेशा ये गुस्सा रहता है। इसने एक काम और किया है, गलत काम किया है। इसने मिरांडा का एक बार रेप करने की कोशिश की है। तो उसी के बाद से प्रोस्पेरो इससे बहुत ही ये नफरत करता है, और इसको वो केवल बहुत काम से ही बस जो है तो वो ये बुलाता है। लेकिन जो ये एरियल है वो प्रोस्पेरो की बहुत वफादार है। तो जब एलोन्जो, एंटोनियो, सेबास्टियन और गोंजालो जब वो तूफान से बचकर एक द्वीप पर पहुंचते हैं, एक आइलैंड पर पहुंचते हैं, एलोन्जो को लगता है कि उसका जो बेटा है फर्डिनेंड, कि लगता है वो मर गया है। लेकिन लेकिन जो ये गोंजालो है वो उनको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, वो यहीं कहीं कहीं खो गया होगा। लेकिन एलोन्जो ये सोचता है कि नहीं, मुझे ये लगता है कि मेरा जो बेटा है वो तूफान में, उस टेम्पेस्ट में कहीं शायद हमसे वो बिछड़कर वो मर गया है। एक दिन जब रात को ये सारे ये कि सब लोग
एलोन्जो, एंटोनियो, सेबास्टियन, गोंजालो और ये सब लोग जो उस शिप पर जो सवार थे, वो जब रात को सब सोए रहते हैं, तो जो एंटोनियो होता है, जो प्रोस्पेरो का राजपाट छीन चुका है, और ये सेबास्टियन जो किंग ऑफ नेपल्स, जो एलोन्जो का जो ये भाई है, वो दोनों आपस में योजना बनाते हैं कि क्यों ना हम एलोन्जो को और ये जो है, और ये जो एक नौकर है, ये जो एक दरबारी है गोंजालो, हम इन दोनों को मार दें और सारा राजपाट जो नेपल्स का जो ये किंगडम है वो सब हम हथिया लें। लेकिन जो एरियल है वो उन दोनों की बात को सुन लेती है और वो चुपके से अपने जादू से गोंजालो को जगा देती है, और इस तरीके से एलोन्सो की और ये जो है गोंजालो की मौत की जो ये सब योजना है वो असफल हो जाती है, एंटोनियो की और ये सेबास्टियन की। इतने में जब ये सब लोग आइलैंड पर आ जाते हैं, तो वहीं पे ट्रिंकोलो जो एक क्लाउन टाइप है, और स्टीफेनो जो एक शराबी टाइप का एक आदमी है, जो इन सब का एक ये बटलर है, वो जब कि द्वीप पर पहुंचते हैं तो वहां उनको कैलिबान मिलता है। कैलिबान वही जो लिटिल मॉन्स्टर है, जो साइकोरेक्स जो वो चुड़ैल थी, उसी का ये सब उसी का ये पूरा एक आइलैंड है। और अब इस कैलिबान को प्रोस्पेरो ने अपना ये जो है ये सब गुलाम बनाया हुआ है। तो जब कैलिबान ट्रिंकोलो और स्टीफेनो से मिलता है, तो स्टीफेनो उस ड्राफ मॉन्स्टर को शराब पीने के लिए ऑफर करता है, और जब कैलिबान जो है कि वो शराब पी लेता है, तो वो स्टीफेनो को अपना भगवान मानने लगता है, और कैलिबान ये बोलता है कि अगर हम प्रोस्पेरो को मार दें और हम मिरांडा का और अगर मैं ये मिरांडा से मैं शादी कर लूं, तो मैं तुम्हें यहाँ का सब कुछ तो ये पूरा जो एक आइलैंड है वह तो मैं तुम्हें उसका राजा बना दूंगा, मैं तुम्हें ये पूरा जो आइलैंड है वो सौंप दूंगा। अब वो जो है कि सब ये तीनों लोग केवल बस शराब के नशे में अपनी योजना बना रहे हैं। इतने में जो ये फर्डिनेंड है वो अकेला भटकता हुआ मिरांडा से वो मिलता है, और दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। इट मीन्स दे फॉल इन लव विद ईच अदर एट फर्स्ट साइट। प्रोस्पेरो जानबूझकर उनके प्रेम का विरोध करता है ताकि वह फर्डिनेंड की सच्चाई और अपनी बेटी के प्रति एक डेडिकेशन को वो जांच सके। और जो ये प्रोस्पेरो है वो फर्डिनेंड को ये कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो पहले तुम इस आयरलैंड पर हमारे तौर तरीके सब सीखो, कुछ मेहनत करो और हमारे काम में हमारा हाथ बटाओ। अब जो प्रोस्पेरो है वो जो है ये फर्डिनेंड को वो जंगल से लकड़ियां लाने को वो बोलता है, उसको वो उसकी परीक्षा लेना चाहता है, वो उसको एग्जामिन करना चाहता है कि क्या वाकई में वो मेरी बेटी से प्यार करता है या नहीं। जैसे कि आपने अगर ये एक फिल्म देखी होगी मैंने प्यार किया, उसमें हीरोइन का जो ये फादर है वो सलमान खान से ये बोलता है कि अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो तो तुम मुझे 1 महीने में इतना पैसा कमा कर दिखाओ। तो ऐसे ही जो प्रोस्पेरो है वो फर्डिनेंड से ये बोलता है कि अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो तो तुम
यहां पे मेहनत से मेरी बेटी को तुम जी कर दिखाओ, तुम मुझे मेहनत करके दिखाओ। इतने में कैलिबान स्टीफेनो और ट्रिंकोलो को पहला फुसलाकर प्रोस्पेरो की हत्या और वो जो है कि मिरांडा से शादी की एक साजिश वो रचता है। लेकिन ये सब बातें एरियल, जो प्रोस्पेरो की जो स्पिरिट, जो उसकी एक वफादार स्पिरिट होती है, वो ये सब प्लान प्रोस्पेरो को सब बता देती है। और फिर प्रोस्पेरो उनको उस आइलैंड से बाहर निकाल देता है कुछ देर के लिए। फिर प्रोस्पेरो को विश्वास हो जाता है जब काफी दिनों के बाद कि हाँ, कि फर्डिनेंड वाकई में मेरी बेटी मिरांडा से प्रेम करता है, तो वह उनकी सगाई को स्वीकार कर लेता है और उनकी खुशी के लिए एक जादुई, एक मैजिकल परफॉर्मेंस स्टेज पर रखता है। और उस मैजिकल परफॉर्मेंस में आइरिस, केयर्स एंड जूनो, जो रोम के देवी देवता हैं, वो सब आते हैं और उन दोनों की सगाई में उनको आशीर्वाद देकर वहां से वो सब चले जाते हैं। और अपना एक मैजिकल परफॉर्मेंस को देकर वहां पे वो लोग वहां से जब वो चले जाते हैं, तो उसी बीच जो एरियल है, उसी परफॉर्मेंस में जो एरियल है, वो कैलिबान को, स्टीफेनो को और ट्रिंकोलो को अपने जादुई संगीत से बहकाकर उनको एक कीचड़ भरे तालाब की ओर ले जाती है और उन पर आत्माएं और कुत्तों जैसी आकृतियां हमला कर देती हैं और वे आपस में बहुत ह्यूमिलेटेड फील करते हैं। और फिर इसके बाद प्रोस्पेरो अपने ही जादू से अपने दुश्मनों को अपनी आइलैंड पर खींचता है, अपने पास बुला लेता है अपने जादू से, और वो उनसे ये बदला लेने की बजाय वो उन्हें माफ कर देता। एलोन्जो अपने पाप को स्वीकार करता है, जो किंग ऑफ नेपल्स है, और पछताता है कि उसने एंटोनियो की मदद करके प्रोस्पेरो की सत्ता छीन ली थी। एलोन्सो को जब ये बात पता चलती है कि उसका बेटा फर्डिनेंड अभी तक जीवित है और वो मिरांडा से विवाह करने वाला है, ये देखकर एलोन्सो बहुत खुश होता है और सबसे मेल मिलाप करता है। कैलिबान ये मानता है कि उसने स्टीफेनो और ट्रिंकोलो की बात मानकर प्रोस्पेरो से गद्दारी, एक बहुत ही गद्दारी की थी, और वो अपनी इस फुलिशनेस को स्वीकार करता है और वो फिर वादा करता है कि वो आगे से ये सब मिस्टेक्स ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। प्रोस्पेरो फिर अपनी ऑडियंस को एड्रेस करता है और वो एरियल को आजाद कर देता है और वो अपने सब एनिमीज को माफ कर देता है और वो अपना सब जादू वादू की जो सब जो ये बुक्स होते हैं वो सब उन्हें वहीं पर छोड़कर वो चला जाता है और फिर वो मिलान का ड्यूक बन जाता है। और फिर अंत में वो एक बार फिर जो है कि ऑडियंस से एक बार फिर वो रूबरू होता है। तो नाटक की जो मेन थीम है वो फॉरगिवनेस और रिकंसिलेशन। So let's move on. The important dialogues of the play. We are made of such stuff as are made on. Our little life is rounded with a sleep. ये जो डायलॉग है वो बोलता है प्रोस्पेरो, वी आर मेड ऑफ सच स्टफ एज मेड ऑफ ड्रीम्स।
कि हम ऐसे ही तत्वों से मिलकर हम ये बने हैं कि जैसे कि सपने. इट मीन्स लाइफ इज इनसब्सटेंशियल एंड फ्लीटिंग, मोर्टल. कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल सपने की तरह है, अभी सोए और अभी जाग गए. Hell is empty and all the devils are here. This famous dialogue is spoken by Ariel, and this dialogue describes the chaos of the storm. And this dialogue is the metaphor for corruption in mankind. What's past is prologue. This dialogue is spoken by Antonio. The past only sets the stage for present action. This dialogue is spoken by Antonio to justify Sebastian's murder plot. O brave new world that has such people in it. This dialogue is spoken by Miranda, innocent wonder at seeing new people. क्योंकि वो पहली बार मनुष्य जाति को वो जब वो देखती है तो वो ये सेंटेंस ये बोलती, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट. क्या संसार में वाकई इस तरीके के खूबसूरत खूबसूरत लोग रहते हैं. This thing of darkness I acknowledge mine. This dialogue is spoken by Prospero, accepts responsibility for Caliban, acknowledges colonial guilt. Prospero इस डायलॉग को बोलता है और वो एक्सेप्ट करता है कैलिबान की रेस्पॉन्सिबिलिटी को. You taught me language and my profit on it is I know how to curse. This dialogue, and this is also most famous dialogue. कैलिबान ये डायलॉग को बोलता है, लैंग्वेज इज ए टूल ऑफ ऑपरेशन. कि अगर हमें किसी भी आइलैंड को, किसी भी देश को पहले अगर हमें गुलाम बनाना है तो पहले उसकी लैंग्वेज को गुलाम बनाना पड़ेगा. The rarer action is in virtue than in vengeance. This dialogue is spoken by Prospero. That forgiveness is nobler than revenge. कि माफ करना सबसे अच्छा है बजाय बदला लेने के लिए. Misery acquaintance a man with a strange bad fellow. This dialogue is spoken by Trincolo. वो कहता है कि hardships forces strange alliances. कि अगर जब एक मुसीबत आती है तो वो अपने साथ सो मुसीबत लेकर आती है. Full fathom 5 thy father lies of his bonds and carol made. This is the song spoken by Ariel, and this dialogue is a transformation of death. It means हम पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर हमारी हड्डी देखते जाते हैं, और फिर हम पैदा हो जाते हैं. So Ariel songs to Ferdinand. Now my charms are all overthrown, and what strength I have mine own. This dialogue is spoken by Prospero in epilogue. In this dialogue, he speaks about his giving up his magic and seeks audience release. और इस डायलॉग का एक मीनिंग ये भी निकलता है, क्योंकि ये शेक्सपियर का लास्ट डायलॉग था, तो जो शेक्सपियर है वो अपनी ऑडियंस से भी फेयरवेल कहता है. Be not afraid, the island is full of noises. This dialogue is spoken by Caliban. This dialogue describes the island's music and beauty. Good worms have bad sons. This dialogue is spoken by Miranda. Noble parents can have wicked children. The meaning of this dialogue is good worms. कि हो सकता है कि अच्छे अच्छे माँ बाप के यहाँ भी कभी कभी बहुत खराब बहुत बेकार संतान पैदा हो जाती है. A most poor credulous monster. This dialogue is spoken by Trincolo, and in this dialogue he mocks Caliban, most poor credulous monster.
इस डायलॉग में जो ट्रेंकुलो है वो कैलिबान जो डाफ मॉन्स्टर है उसका मजाक बनाता है, क्योंकि एक क्योंकि एक कोलोनाइजर ने एक छोटे से शैतान को अपना गुलाम बनाया हुआ। How beauteous mankind is, oh brave new world. This dialogue is spoken by Miranda when for the first time she sees the human being on this island. So most lying slave whom strips may move, not kindness. This dialogue is spoken by Prospero. Prospero calls Caliban a slave fit only for punishment. So must lying slave whom strips may move, not kindness. कि तुम एक ऐसे तुम गुलाम हो कि जिसको केवल दंडित किया जा सकता है, उस पर रहम नहीं किया जा सकता। My library was dukedom large enough. This dialogue is spoken by Prospero, content with books over power. कि मेरा वो कहता है कि इस डायलॉग तो इस डायलॉग के प्रति ये कहता है कि मेरा जो असली राजपाट है वो ये किताबें हैं, ना कि मेरा असली राजपाट। Sir, I am vexed, bear with my weakness. This dialogue is also spoken by Prospero. He feels human limitation. Reminder of mortality despite magical power. कि मेरे अंदर मैजिकल पावर्स तो हैं, लेकिन मैं एक इंसान हूं। A devil, a born devil on whose nature nurture can never stick. This dialogue is also spoken by Prospero. Believes Caliban is naturally evil. He justifies colonial prejudices. Prospero ये बोलता है। There be some sports are painful and their labor delight in them soft sets off. This dialogue is spoken by Ferdinand. Hard labor seems sweet when done for love. ये डायलॉग बोलता है कौन? फर्डिनेंड। की जब कोई मेहनत प्यार के लिए की जाती है तो वो मेहनत मेहनत नहीं, प्यार ही लगता है, सॉफ्ट लगता है। My spirits as in a dream are all bound up. This dialogue is spoken by Ferdinand when he is bewildered by wonder and loss. I am your wife if you will marry me. If not, I'll die your maid. This dialogue is spoken by Miranda when she is in love with Ferdinand. Bold declaration of love to Ferdinand कि अगर मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही मर जाऊं। Now look at the important question of the play. Who is the rightful Duke of Milan? As you know, Prospero. Which character says the famous line, "We are made of such stuff as made of dream"? Prospero. Who is Caliban's mother? Sycorax. What is the relationship between Miranda and Ferdinand? First lovers and then later on married. Oh brave new world, what that has such pupilage. Who said this word? Miranda. Which character represents colonial exploitation most clearly? This question is most important. Which character represents colonial exploitation most clearly? Caliban, because Prospero colonized Caliban's land. Who usurped Prospero's dukedom? His brother. Antonio. Who says, "You taught me language and my profit on it, I know how to curse"? This dialogue is spoken by Caliban. The Tempest. Who is Alonso, king of Naples? Who conspires with Antonio to kill Alonso? Sebastian. उसका भाई Sebastian. Who says the rarer action is in virtue than in vengeance? Prospero बोलता है कि बदला लेने से अच्छा है कि माफ कर दिया। What does Prospero break to symbolize giving up magic? His staff,
drowns his books. What does Caliban attempt with Stefano and Trincolo? To kill Prospero. उन दोनों ने कि कैलिबान ने स्टीफेनो और ट्रिंकोलो से मिलकर प्रोस्पेरो को मारने की कोशिश की थी. Who speaks the line misery acquaintance a man with strange bedfellows? कि अगर एक मुसीबत आती है तो उसके साथ 1000 मुसीबत आती है. ट्रिंकोलो बोलता है लाइन. Who is Gonzalo? Gonzalo is Prospero's loyal servant who delivered the famous song Full Fathom 5 and the Father Lies. Ariel बोल ये एक सॉन्ग है जो कौन गाती है? एरियल. The epilogue of the Tempest is spoken by Prospero himself. तो लास्ट का जो ये डायलॉग है वो प्रोस्पेरो ही बोलता है. What does Prospero call Caliban in act? A lying slave. What theme is not central to the Tempest? कौन सी थीम सेंट्रल नहीं है? Illusion versus reality, colonialism, forgiveness and revenge without reconciliation. So illusion versus reality भी थीम है, colonialism भी थीम है and forgiveness भी थीम है. Revenge लेना इस प्ले की थीम नहीं है. Who says be not afraid, the isle is full of noises? ये बोलता है कैलिबान. What is Prospero's daughter's name? Miranda. What is Alonso's daughter married off to? Eunice. Which character is Jester Trincolo? Which of the following best describe the genre of the Tempest? Is the romance and tragicomedy. So as for now, we shall meet in our next video. Thank you, and we shall meet in our next video.